Okay, now in this lecture, we will discuss equation of trajectory. Write down today equation of trajectory of a projectile. Equation of trajectory of a projectile. Equation of trajectory. Equation of trajectory of a projectile. What is the meaning? सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका. ओके, इसका क्या मतलब. देखो, अगर मैं कहूं कि दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ओके, और यहां से किसी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहां तक आता है, मींस दिस इज द horizontal distance covered, and at that particular instant it is not highest, this is the highest, but at that particular instant, let us suppose the vertical displacement covered by this projectile is y. ओके, इक्वेशन का मतलब जैसे हम लोग y इज इक्वल टू 4ax² पैराबोला इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरह का हम बनाते हैं ना, ये इक्वेशंस बनती है. इसी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि ठीक है. तो हम बोलेंगे कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी टाइम पे अगर प्रोजेक्टाइल एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, तो लेट अस सपोज ये वर्टिकल कितना कर रही है, वाई कर रही है. आप सबको पता है दिस इज द यू, एंड दिस कंपोनेंट इज व्हाट, यू cos theta, and this component is what, u sin theta, if this is theta. Okay, okay, draw the figure. Draw the figure again. We will take first horizontal component. S is equals to ut plus half at square. X, that is displacement. Displacement covered is x, and initial horizontal velocity, that is u cos theta, into time taken is a small t because it is not total time, plus 0 because in horizontal direction there is no acceleration. That means t will be equals to x upon u cos theta. Now again, we will take vertical component, s is equals to ut plus half at square. We will use again this formula, vertical displacement, that is y, and vertical component of velocity u sin theta into t, plus 1 by 2 minus g into t square. U sin theta into t, in place of t you can put x upon u cos theta minus 1 by 2 times g
x upon u cos theta whole square. You can note down here y is equals to u cancel x tan theta minus g by 2 u square cos square into x square. G upon 2 u square cos square theta. This is the equation of the projectile, equation of trajectory of the projectile. This is time independent. Okay, this equation is time independent. Means this is basically equation in x and y. If you will put the value of x, you will get the value of y because theta and u is constant. Also, g is constant. And anyone? Done. Okay. Now the equation is y यहाँ पे लिखना y is proportional to x square यानी minus x square है यहाँ पे minus y is directly proportional to minus x square. देखना यहाँ पे x भी है और x स्क्वायर भी है. जो ज्यादा पावर वाला होगा वही हमारा डोमिनेट. ठीक है ना. जो ज्यादा पावर वाला होगा वही डोमिनेट होगा. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है. सो हेंस the trajectory is parabola. इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं. पैराबोला क्या होता है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन क्लास 11. यू विल स्टडी parabola, hyperbola, ellipse and circle. Okay, write down. This is theory is complete. इसमें थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है. इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द एंगल ऑफ projection. Find the angle of projection for which the horizontal range and maximum height are equal.
Find the angle of projection for which the horizontal range and maximum height are equal. देखो हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज का फार्मूला क्या होता है ना? पहले रेंज का फार्मूला लिखो। रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हाइट का क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को बराबर करो, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g is equals to u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। देखो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा सकता है ना, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2। 2 से 2 इधर हो जाएगा, साइन थीटा के बाद साइन थीटा कैंसिल इधर हो जाएगा, पहले 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। दैट इज द आंसर। tan इनवर्स कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। Open your NCERT. Open your NCERT. एग्जाम्पल इसमें देखोगे आपको मिलेगा, आपको अ हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ, मिला आपको? व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर? एनीवन? चैप्टर नंबर 4 आप ओपन करोगे, आपको एग्जाम्पल नंबर 4.8। हाँ 4.8 4.8 पेज नंबर बता दो तुम लोग जो भी हो। 4.8 एग्जाम्पल 4.8 इस पे आपको लिखा होगा, देखो आपको मिलेगा a hiker stands on an edge of a cliff, है ना, 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting the air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Read the question again. Read yourself. देखो इस पर क्या है, a hiker stands on a edge of a cliff of 490 मीटर है, मान लेते हैं ये 490 मीटर है ना, 490 मीटर, दिस इज द हाइट, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, एक स्टोन हॉरिजॉन्टली थ्रो होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टली, ओके, नेग्लेक्टिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रो करेगा तो ये ऐसे आके गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे गिरेगा, ये हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल।
इसकी स्पीड कितनी थी, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को समझ लो, मैंने क्या लिखा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया, है ना। पूछा हुआ कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड से हिट करेगा, है ना, यानी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g यूज कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने जो भी फार्मूले पढ़े हुए हैं, तीन फार्मूले, कौन कौन से, तीन फार्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज का, ये तीनों पढ़ा हुआ हमने ना, ये तीनों का तीनों फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन की है वो ग्राउंड से ग्राउंड के लिए। क्लियर होगी बात, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए क्या, ये क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, एक पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड क्या है। तो ये जो फार्मूले हमने तीन पढ़े हुए हैं वो वैलिड नहीं होंगे, इसलिए उस फार्मूलों को आपको याद तो करना है, लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि दैट इज ओनली वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, मींस ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, तब क्या यूज करेंगे, जो कंसेप्ट हमने लगाया है उस पर डिराइव करने के लिए, वही कंसेप्ट का यूज करेंगे। टाइम निकालना है आपको, हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ और यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 490, यानी हमको एस दिया हुआ, एस दिया हुआ, ठीक है, वो भी कितना, माइनस 490 मीटर, नेगेटिव डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u भी गिवन, ठीक है, और हमको टाइम कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन, यानी एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हमको क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर ये यूज कर ले, क्योंकि ये t हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, तो इससे t बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। एक बात यहाँ पे याद रखना हमको, अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस इज ओनली वैलिड फॉर वन डायमेंशनल मोशन, है ना। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या तो हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की सिर्फ बात करेंगे, या हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वर्टिकल में हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी वर्टिकल में है, इसलिए इनिशियल स्पीड भी हम किसमें लेंगे, इनिशियल स्पीड भी हम वर्टिकल में लेंगे। तो कोई बताएगा यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है, इनिशियल यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एनीवन, 0. 0 होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे देखना है कि क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी, सारी की सारी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल में। तो इनिशियली वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वेलोसिटी नहीं, सॉरी कोई वेलोसिटी नहीं, देखोगे कि सारी की सारी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए बोला गया है कि द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल, सॉरी द स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, लिखा है ना इसमें, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, यानी इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0, ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 15, लेकिन यहाँ पे हम 15 यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल component, we are talking about vertical component, so we will take the vertical initial velocity, ठीक है, that is 0। मैं पुट कर दूं वैल्यूज को, -490 is equals to 0 plus 1/2 minus 9.8 and t square, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो -490 मल्टीप्लाई बाई 2 और -9.8 is equals to t square,
Okay, minus minus cancel. Note down fast. 4.8. Sorry, 4.9. ये 100 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये t हो जाएगा एंड t इज इक्वल टू 10 seconds. t इज इक्वल टू 10 सर सर एक बार वर्टिकल कैसे जीरो हुआ है वो समझा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ना, देखो बोला है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल है ही नहीं। अगर ऐसे होता, ऐसे ऐसे थ्रो करता ना, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते इसमें, और इसमें वर्टिकल भी होता है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल भी होता अगर ये थीटा पे होता। लेकिन बोला है कि ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है ना, हॉरिजॉन्टली, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, समझे। या फिर अगर आप ऐसे मान सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि ये किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, अगर ये u है तो ये वाला क्या होगा, u cos थीटा, ये वाला क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है। तो कहा गया कि हॉरिजॉन्टली यानी थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप रखोगे u cos 0 और 0 इज 1, हाँ, ओनली u बचेगा। और वर्टिकल में देखोगे तो क्या हो जाएगा, u sin 0 0, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं, वो जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। यानी ये अगर ये हॉरिजॉन्टल में होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 होगा, ठीक है। ओके सर। टाइम आ गया हमारा कितना, 10 सेकेंड्स। ध्यान रखना यहां से हिट करेगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी ऐसे कुछ होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब हम बात करते हैं कि ये यहां से यहां आया, तो यहाँ पे जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होगी, यानी यहाँ पे भी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह पे स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हर जगह कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। स्पीड हमारी इंक्रीज या डिक्रीज तभी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में, तो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि होगी, हो सकती है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली वर्टिकल, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड कितनी होगी, कैलकुलेट करने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज करेंगे। इनिशियल वर्टिकल स्पीड इज 0, sorry, initial is 0 and vertical is v square and 2 into minus 9.8 into displacement, that is 490। अच्छा, v को हम डाउनवर्ड ले रहे हैं ना, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा तो माइनस, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 और 9 ना 980, एक डेसिमल इधर अगर लेके आएंगे तो 98 मल्टीप्लाइड बाई 9, एक जीरो इसको दे देंगे तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 98 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट 98, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15। नोट डाउन।
Horizontal speed 15 meter per second. Vertical speed 98 meter per second. Okay. Now the resultant will be what? The resultant will be this, and the net velocity will be equals to under root ux square plus uy square. A square plus b square plus 2ab cos 90. It is 0. Okay. 15 square plus 98 square. That is answer. Now clear, no? Okay. Write down next. Next question. Write down the maximum vertical height of a projectile is L M. The maximum vertical height of a projectile is mm, 10 meter. (10 meter) if the magnitude of initial velocity is if the magnitude of initial velocity is 28 meter per second. 28 meter per second. What is the direction of initial velocity? Take g equal to 9.8 meter per second square.
take 9.8 g equal to 9.8 meter per second square to yourself. Sir, the magnitude of initial The maximum vertical height of a projectile is 10 m, 10 meter, if the magnitude of initial velocity is 28 meter per second. What is the direction of initial velocity? Take g equal to 9.8 meter per second square. Done. What is the answer? 30-degree along x. हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ, आपको पता ही है, u square sin square theta upon g. H it is given, you have to calculate theta na. H it is given 10 and g मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना आएगा 28 u square, एक मिनट, 9.8 into 28 square sin square थीटा, है ना, sin square theta is equals to 10 multiplied by 9.8.
28 multiplied by 28. है ना? डिवाइड कर सकते हो इसको। थर्टी डिग्री आएगा, टेक 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, थीटा इक्वल 30। सॉल्व कर लो इसको। Okay, write down next question. Prove that the time of flight capital T. Prove that the time of flight capital T and horizontal range capital R and horizontal range capital R of a projectile are connected by the equation gt square is equals to 2r tan theta. Gt square is equals to 2r tan theta, where theta is the angle of projection. Where theta is the angle of projection. Gt square equal to 2r tan theta. I think it is blur, but it can be seen. Okay. Sir, repeat the question. Prove that the time of flight capital T and the horizontal range capital R of a projectile are connected by the equation gt square equal to 2r tan theta, where theta is the angle of projection. You know the formula, 2u sine theta upon g. Okay, and you know the formula, u square sine square theta upon g. Okay, u square sine 2 theta, sine 2 theta upon g. First square this, p square 4 into u square sine square theta upon g square. Divide these two. T square upon r. Here it is 4
4 u square sin theta into sin theta और अपॉन में g स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r g अपॉन u स्क्वायर साइन सर u स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे आप नीचे 2 u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1g से 1g कैंसिल हो जाएगा 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा इट इज व्हाट f2 है यहाँ पे ये 2 हो जाएगा u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा टी स्क्वायर अपॉन आर ये जी भी बचेगा यहाँ पे ना जी इधर मल्टीप्लाई कर दो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r 2 इधर रहेगा r इधर रहेगा और ये tan थीटा जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r tan थीटा और सिंपल है दोनों इक्वेशन को आप लिख लो और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो ओके थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सही नहीं हो पा रहा ओके ये प्रोजेक्टाइल आपका फिनिश हो गया इस पे कुछ क्वेश्चंस है मैं इसको सेंड कर दूंगा एज अ होमवर्क इसको आप लोग सॉल्व कर लेना यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा दो टॉपिक बचा हुआ है उसको भी हम लोग फिनिश कर देंगे जल्दी ठीक है आज यही तक रहने देते हैं नेटवर्क बेकार है नाउ यू कैन लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर you may leave the class. Thank you. After writing present, sir, you may leave the class. After writing present shall leave the class, each and every student.